हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेदा एजुकेशन लर्न फ्रॉम होम। मैंने पिछले वीडियो में एक आपको असाइनमेंट दी थी, असाइनमेंट 1। उसमें 4 क्वेश्चंस दिए थे, राइट? आई थिंक यू सॉल्व दैट, राइट ना? इफ़ यू आर नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चंस, इफ़ यू नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन, तो आप क्या करिए, वो ट्राई कीजिए। यानी कि वो मैंने जो 4 क्वेश्चंस दिए वो आप खुद ही कोशिश कीजिए कि कैसे सॉल्व करना है। मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस लिए, पर आप खुद ही वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है? If you have any problem in solving that questions, then you can see this video. But मैं फिर से कर रहा हूँ, पर आप खुद ही वो क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर अगर आपको डिफ़िकल्टी आ गई उस क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ठीक है, तभी आप ये वीडियो देखिए, ठीक है? चलो, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, ये मैंने असाइनमेंट दी थी, राइट? टोटल 4 क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन, when 3 gram of carbon is burned in 8 gram oxygen and 11 gram of carbon dioxide is produced. Okay, now see here what is given. When 3 gram of carbon is burned in 8 gram oxygen, okay, and it gives 11 gram of carbon dioxide. We know that when carbon and oxygens, yes, when carbon and oxygens comes in contact with each other or when combines, then we get carbon dioxide, right? It produces carbon dioxide. But we also had studied that law of constant proportion. Yes, the proportion by mass of constituent element of yes different samples, that means its ratio is fixed, ठीक है? और यानी कि जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहा है उसके जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट रहेंगे उसका रेशो फिक्स रहता है। हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है 3:8, और यहाँ पर ही दिया हुआ है भी, वेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बर्न हो रहा है, राइट, बर्न इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, देन इट गिव्स 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ सी हियर, we know that ratio when yes carbon react with oxygen, but ratio is fixed 3:8, then it gives carbon dioxide, right? Carbon dioxide compound, right? Here this ratio we have to fix 3:8, then we get that carbon dioxide. And here if you take 3 gram of carbon and 8 gram of oxygen, it gives 11 gram of carbon dioxide. This one is given. Now next, what mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? Now see here, we have to find mass of carbon dioxide, but here 3 gram of carbon is given with 50 gram of oxygen. 3 gram of carbon is burned with 50 gram of oxygen, then it gives carbon dioxide. And here, in that case, we have to find mass of carbon dioxide. But we know that law of constant proportion, we have to keep this ratio fixed 3:8. But here, carbon is 3. That means carbon only react with 8 gram of oxygen, right now? Because we have to fix that ratio constant. अगर हम कार्बन 3 ग्राम का ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी हमें 8 ग्राम का लेना होगा। यहाँ पर दिया है 50 ग्राम पर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के लिए जब हम कार्बन 3 ले रहे हैं तब ऑक्सीजन भी हमें 8 लेना होगा, यानी कि 50 माइनस 8, आई थिंक 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज अनरिएक्टिव, यानी कि अनरिएक्टिव होने वाला है, करेक्ट ना? क्योंकि हमें रेशियो फिक्स रखना है 3:8, तभी कार्बन डाइऑक्साइड हमें फॉर्म होने वाला है, राइट? दैट मीन्स हियर how much mass of carbon dioxide is? Yes, 11, right? Now which law of chemical combination will govern your answer? Law of constant proportion. Okay, now see here, इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करते हो तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले गिवन लिखना होगा, राइट? दैट मीन्स क्या दिया है क्या नहीं दिया वो हमें देखना होगा। फिर उसके बाद कौन सा फॉर्मूला, यानी कि यहाँ पर क्या करना होगा, क्या हमें फाइंड करना है वो भी देखना होगा, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं। In this type of question, you have to write down answer in this way. Now see here. In a reaction, 3 gram of carbon react with 8 gram of oxygen to produce 11 gram of carbon dioxide. And we know that the reaction when carbon means C and oxygen O2, right? It gives carbon dioxide, right? When carbon react with oxygen, it gives carbon dioxide. Okay. And here 3 gram of carbon is given में दिया हुआ है, and 8 gram का oxygen, it gives 11 gram of carbon dioxide.
एंड वी नो दैट रेशो कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होने वाला है, जब उसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट यानी कि कार्बन ऑक्सीजन का रेशो कितना होने वाला है 3:8। यहाँ पर है 3:8 रेशो फिक्स है, इसलिए हमें 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। अब क्या दिया है, हियर 3 ग्राम का कार्बन लिया है और 50 ग्राम का ऑक्सीजन लिया हुआ है, राइट। हियर 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न विथ 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। पर कार्बन डाइऑक्साइड कब फॉर्म होने वाला है, जब इट्स रेशियो 3:8 फिक्स हो रहा है। यहाँ पर कार्बन 3 लिया है हमने, यानी कि ऑक्सीजन उसके प्रोपोर्शन में आना चाहिए 3:8। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर कार्बन हमें 6 दिया है, ठीक है, अगर हमें यहाँ पर कार्बन 6 दिया है तो ऑक्सीजन कितना लगना होगा हमें, वी हैव टू कीप दिस रेशियो कांस्टेंट, हमें ये रेशियो कांस्टेंट रखना है। अगर यहाँ पर 6 है तब यहाँ पर कितना आने वाला है 16, राइट। 3 इंटू 2 6, 8 इंटू 2 16, ये रेशियो फिक्स ही रहा ना, 3:8 फिक्स ही रहा है। ओके समझ में आ रहा है ना, यानी कि यहाँ पर हमने कितने 3 ग्राम ऑफ कार्बन लिया है, तो ऑक्सीजन भी कितना लगने वाला है हमें 8 ग्राम का लगने वाला है, राइट। यानी कि इसमें सा 50 ग्राम सा सिर्फ 8 ग्राम का ही ऑक्सीजन वो यूज़ करेगा, फिर हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। बिकॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस बोलता है ना कि जब भी कंपाउंड फॉर्म होने के लिए यस उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का रेशियो फिक्स रहता है। ओके दिस वन इज क्लियर। नाउ इसके लिए हमें आंसर ऐसा लिखना होगा, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, हमें पता है वो लॉ CH2O 3:8 टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 हमें रखना ही है। नाउ सी है द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स कार्बन एंड ऑक्सीजन, यहाँ पर हमने देखा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है 3:8 चाहिए, कब, जब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होना है, उसके कार्बन का एंड ऑक्सीजन का यस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास 3:8 ही रहना होगा, तभी हमें ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। ये हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है ना। नाउ thus it proves the law of constant proportion. Now see here, if 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen, पर यहाँ पे हमें रेशियो 3:8 फिक्स रखना है। अगर हमने 3 ग्राम का कार्बन ले रहे हैं तब यहाँ से 8 ग्राम का ही हमें ऑक्सीजन लेना होगा। तो सी है हम अब इसका आंसर कैसे लिखना होगा हमें, ये देखो, बट व्हेन 3 ग्राम ऑफ कार्बन मस्ट कंबाइन विथ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन देन एंड देन ओनली इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें पता है क्योंकि वी हैव टू फिक्स दिस रेशियो 3:8। कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होना है तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो कैसा होना चाहिए 3:8 ही रहना चाहिए। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन 3 रह रहे हैं तो ऑक्सीजन 8 ही लेना होगा, तभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है, राइट। दस इट मीन्स दैट 50 ग्राम में से हमें 8 ग्राम का ही लेना होगा और बाकी के जो रहेंगे यानी कि 50 माइनस 8 42 ग्राम वो कैसे रहेंगे, अनरिएक्टिव होंगे। ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट, राइट। कार्बन 3 ग्राम का ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी 8 ग्राम का ही लेना होगा, पर हमें 50 ग्राम का ऑक्सीजन लिया है यानी कि उसमें सा 42 ग्राम कैसा होने वाला है, वो अनरिएक्टिव, वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के लिए रेशियो 3:8 फिक्स ही होना पड़ता है, राइट। नाउ सी है द रिमेनिंग 42 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल बी लेफ्ट अनरिएक्टिव, राइट। यानी कि 42 ग्राम का ऑक्सीजन कैसे होने वाला है, वो अनरिएक्टिव रहने वाला है, वो कार्बन के साथ रिएक्ट नहीं करने वाला। ओके सो इन दिस केस ओनली वी हैव गेट 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म, राइट ना, बिकॉज इफ 3 ग्राम एंड 8 ग्राम है ना, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बताता है मास ऑफ टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर 3 + 8 ये देखो कार्बन, ये देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, राइट। अगर ये 3 ग्राम का है, सी है अगर ए 8 ग्राम का है, राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें कितना मिलने वाला है 3 + 8 11 ग्राम। मास ऑफ यस कंजर्वेशन ऑफ मैटर हमें यही बोलता है ना, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो फिर हमें कितना मिलने वाला है 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलने वाला है, ठीक है, 11 ग्राम का कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलने वाला है। सो हियर दस अबू आंसर इज गिवन बाय लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट ना। कांस्टेंट प्रोपोर्शन के वजह से ही हमें ये पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है, राइट, बिकॉज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन टेल्स दैट, क्या बताता है वो, द मास यस द रेशियो बाय मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का हमने एग्जाम्पल लिया है,
कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने के लिए उसके कंस्टिट्यूट एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन किस प्रोपोर्शन में रहने चाहिए? 3:8 रहना चाहिए। अगर हमने एग्जाम्पल में 3 ग्राम का कार्बन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन भी 8 ग्राम का ही रहना चाहिए, तभी हमें वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। ओके, दिस वन इज क्लियर। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, हमने अमोनिया का एग्जाम्पल लिया था, यस, कार्बन डाइऑक्साइड का भी लिया था। मेरा कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल, आपका कार्बन डाइऑक्साइड का सैंपल, दोनों का, राइट, उसके कंस्टिट्यूट एलिमेंट का रेशियो कितना 3:8 ही रहा था। सेम वाटर का भी देखा था, H2O का प्रोपोर्शन, यस, 1:8। उसी वजह से हमें उतने प्रोपोर्शन का यानी कि वाटर हमें मिलने वाला है, ये हमने पढ़ा था। ओके, वैसे ही ऐसा ही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमें यहाँ पर एप्लीकेशन करना था। ठीक है, राइट, दिस वन इज क्लियर आई थिंक। ओके, नाउ नेक्स्ट second question. Now see here, which postulates of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass? Which postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of mass और मैटर? ओके, मतलब यहाँ पर हमने जो फर्स्ट वीडियो में देखा था डाल्टन्स पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, उसमें से जो हमने 5 पोस्टुलेट देखे थे, ठीक है, उसमें से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर का पोस्टुलेट कौन सा है? इतना सिंपल क्वेश्चन है। हमने 5 पोस्टुलेट्स पढ़े थे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है तो पहला वीडियो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने वो पोस्टुलेट दिया ही हुआ है। ठीक है, तो फिर कौन सा पोस्टुलेट होगा? यस, यू हैव टू राइट डाउन आंसर इन दिस वे। नाउ सी हियर, law of conservation of matter. We know that there is no rise or drop in mass of matter during a chemical reaction, right? That means total mass of reactant is equal to total mass of product. ये हमने पढ़ा ही है, ठीक है। सेम ऐसा पोस्टुलेट हमें डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कौन सा है, राइट? ये देखो, हमने पढ़ा था एटम्स इंडिविजुअल एंड एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी यस कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर, राइट? वो हमने पढ़ा था पोस्टुलेट। According to the postulate of Dalton's atomic theory, I think that one is second postulate. Atoms are individual particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. यानी कि यहाँ पर देखो, पहले डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का पोस्टुलेट देखो, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन में हम एटम्स को क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। केमिकल रिएक्शन हमें पता है, रिएक्टेंट और उसमें यस प्रोडक्ट रहता है। इसमें से जो एटम्स से रहेंगे लेफ्ट साइड में रहेंगे वो हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं सकते। सिंपल सेम हियर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मैटर भी यही बताते हैं ना, देयर इज नो राइज और ड्रॉप इन मास ऑफ मैटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि मास चेंज नहीं होने वाला, राइट? इसके लिए एक एग्जाम्पल लो, टी का, हमने टी का एग्जाम्पल लिया था। टी हम कैसे बनाते हैं? एक तो चाय पत्ती लेते हैं, यस, मिल्क लेते हैं, वाटर लेते हैं, शुगर लेते हैं, राइट? दिस वन हैज ऑल इन रिएक्टेंट। अब जो भी हम उसको हीट देंगे तब केमिकल रिएक्शन फॉर्म होने वाला है, तब हमें न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है। और न्यू प्रोडक्ट यानी कि क्या है? वो हमारा चाय है, टी है, राइट? ये हमने पढ़ा था, इसमें इज टी। और जो न्यू प्रोडक्ट मिला है टी, उसका मास सेम एज दैट ऑफ ए टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि जो मास का, मिल्क का मास, यस, वाटर, शुगर, चाय पत्ती, सब रिएक्टेंट का टोटल मास इज इक्वल टू दैट वन मास ऑफ दैट टी। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर बोलता है। सेम वैसे ही डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स जो हम चाय पत्ती वगैरह ले रहे हैं, चाय पत्ती, मिल्क, वाटर, शुगर, ये जो है, ठीक है, राइट, उसमें जो एटम्स रहेंगे वो एटम्स जो हमारे टी में मिलने वाला है, यानी कि जो हमें न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है टी, राइट, टी न्यू प्रोडक्ट मिलने वाला है, उसमें से सब एटम्स वहाँ पर भी रहने वाले हैं। यानी कि सेम एटम्स रहने वाले हैं, वहाँ पर हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको आंसर इस तरह से लिखना है। ठीक है, एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं इसका। ठीक है, वाटर का लो, H2O, राइट, इसमें यस मास ऑफ दैट हाइड्रो, यस 1:8 रेशियो फिक्स है ना, वो लो, यस मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन एंड देन मास ऑफ दैट H2O, लो, वो सेम रहेगा। सेम वैसे ही एटम्स हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, वो रिएक्टेंट में है, वैसे ही H2O, यस, राइट। नाउ सी हियर, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर लिखना है, फिर उसके पोस्टुलेट लिखना है। अब एक एग्जांपल भी लिख सकते हैं, सेम हियर मैंने अभी बोला वो, यस, वाटर का ले लो, H2 + O, दैट वन इज H2O, राइट, ये भी आप ले सकते हो एग्जाम्पल। नाउ
दस द पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। इस तरह का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, नाउ सी है, सेम है यहाँ पर, यह क्या है, विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, राइट। विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या है, यानी कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, यस, द proportion by mass of constituent element of different sample of compound is fixed, right। ये हमें पहले सबसे पहले लिखना होगा, राइट। द proportion by mass of constituent elements in the different sample of compound is fixed, यानी कि जो constituent element है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक हमने कार्बन लिया, यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, हमें पता है when we combine then we get कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। इसका प्रोपोर्शन कैसा रहता है, 3:8 है, हमें पता है, राइट। वो भी रहने दो, ये देखो, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स्ड, यानी कि एक कंपाउंड फॉर्म होने के लिए इसका प्रोपोर्शन कार्बन का एंड ऑक्सीजन का कैसा रहना चाहिए, 3:8 रहना चाहिए, तभी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलने वाला है। नाउ सी है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का हमने एक पोस्टुलेट पढ़ा था, यस, क्या पढ़ा था, यानी कि उसके एटम्स सेम काइंड ऑफ नंबर रहते हैं, ये देखो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। एक कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल लो, कार्बन का एटम एक है, यहाँ पर भी एक है, ऑक्सीजन के दो है, यहाँ पर भी दो है, राइट। दिस वन इज क्लियर, दैट मीन्स द रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट, राइट। यानी कि रिएक्टेंट में जो कार्बन के ऑक्सीजन के एटम्स है, सेम वैसे ही हमें प्रोडक्ट में सेम वैसे ही नंबर के है, राइट। सो ये दोनों, राइट, ए लॉ है, यानी कि विच पॉस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ए पॉस्टुलेट बताता है, ठीक है। इसके लिए आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड का। इस तरह के क्वेश्चन आया तो हमें यही करना है, एक तो हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लिखना है, फिर उसके बाद यस कौन सा पॉस्टुलेट करता है, विच पॉस्टुलेट, हमें ये क्वेश्चन आया ना, तो आप एग्जाम्पल चाहे तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 3 मार्क्स के लिए आया तो आप एग्जाम्पल भी लिखते हैं। नाउ this postulate of Dalton's atomic theory is the result of law of conservation of matter, definite proportion. Now, last question. Two sample M and N of select lamp were obtained from two different reaction. Okay, यानी कि select lamp हमें 2 sample से मिलने वाला है, एक तो sample M and sample N से, ठीक है, were obtained from 2 different reactions. द डिफरेंट अबाउट देयर कंपोजिशंस आर एज फॉलो, यहाँ पर कंपोजिशन दिए हुए 2 सैंपल्स, यानी कि 2 सैंपल्स करेंगे। सैंपल एम मास 7 ग्राम का है, उसके कंस्टिट्यूट एलिमेंट ऑक्सीजन 2 ग्राम, कैल्शियम 5 ग्राम का। सेम है सैंपल एन मास 1.4 दिया है, उसके कंस्टिट्यूट एलिमेंट ऑक्सीजन एंड कंस्टिट्यूट कैल्शियम, ठीक है। ओके, हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डज दिस प्रूव, यानी कि हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कौन सा लॉ, हमने 2 लॉ पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इनमें से कौन सा लॉ ये प्रूव करता है हमें दिखाना है और हमें एक्सप्लेन करना है। ओके, नाउ हियर फर्स्ट वी हैव टू राइट डाउन गिवन 2 सैंपल्स M एंड N ऑफ सेलेक्ट लैम्प वर ऑब्टेन फ्रॉम 2 डिफरेंट रिएक्शन, ठीक है। सेम है, सबसे पहले हम सैंपल M लेंगे, इस हमने सबसे पहले गिवन लिखा, अब हम सैंपल M लेते हैं, ठीक है। इन सैंपल M द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कहाँ क्या क्या थे वो यहाँ पर, यस, रेशियो ऑफ एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन एंड कैल्शियम का रेशियो लेना होगा, Ca एंड O 5:2, right। Now see here, you have to take the ratio, this one, calcium 5 and here oxygen 2, okay। Same here, इसका भी रेशियो में लेना CO and O, Ca, यस, कैल्शियम का कितना है 1 है, ऑक्सीजन का कितना है 0.4 है, राइट। 5:2 है ना, पर सैंपल इनका कितना है 1:4 है। ये सॉल्व करने की कोशिश करो, कितना आता है देखो, यस, ऊपर लो पॉइंट, यस 10 4, राइट, 5:2, यानी कि इसका रेशियो 5:2 रहा, इसका भी 5:2 रहा है ना, राइट। कौन सा लॉ प्रूव करता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, राइट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। इसका आंसर हम लिखेंगे कैसे, वो देखो, सबसे पहले हमने गिवन लिखा है, फिर उसके बाद हम एक एक सैंपल का लिखते हैं। पहले सैंपल एम का रेशियो देखते हैं, सैंपल एम रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कितने दिए थे 5:2। सो हियर कैल्शियम का Ca एंड ऑक्सीजन का O 5:2, ओके। फर्स्ट
अब हम सैंपल एन का देखते हैं रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन का सेम दिया था, फक्त सिर्फ उसके कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट के मासेस चेंज किए हुए थे। कितने थे? CH2 1H2 0.4, ठीक है। ये देखो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप से यहाँ पर क्या करना है, 0.4 है वो ऊपर दो, 10 आएगा फिर 4 आएगा, हमें वो पता है, हमने वो पढ़ा है, ठीक है। नाउ सी है यहाँ पर क्या है कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ पर हमें 2 से डिवाइड करना होगा, इसलिए हमें रेशियो आएगा, ये देखो कितना 5 × 2 यार 2 × 2, सी इट गिव्स 5H2 2। Oh, now see here, this one is first and 2 both are same. So we can conclude that now by observing from 1 and 2 we conclude that. So for first here now law of constant proportion हमें पता है क्या बोलता है, the proportion by mass of constituent elements yes of in a different sample of compound कैसे रहता है, फिक्स रहता है, हमने पढ़ा ही हुआ है, राइट। सबसे पहले हमने एक स्टेटमेंट लिख लिया, फ्रॉम 1 and 2 भी यही बताता है ना हमें कि डिफरेंट सैंपल्स है, सैंपल M सैंपल N, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, उसके प्रोपोर्शन कैसा रहा, 5:2 भी रहा पहले सैंपल का, सैंपल M का, सैंपल N का भी कितना रहा, 5:2 रहा, तो फिर ये लॉ हमें प्रूव हुआ ना, राइट। सो हियर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन प्रूव दैट वी गेट द सेम वैल्यूज विच वेरीफाइज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। सिंपली हमें ऐसा ही आंसर इसका लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गिवन लिखा, सैंपल एम में से हमने जो जो कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट दिए उसके रेशियो लिया, सेम सैंपल एन के लिया, सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद हमें वो रेशियो यानी कि पहले सैंपल का रेशियो और दूसरे सैंपल का रेशियो दोनों भी सेम आए, और हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूट एलिमेंट इन डिफरेंट सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स, यानी कि सैंपल एम एंड सैंपल एन के प्रोपोर्शन फिक्स रहे थे, राइट। सो फिर ये लॉ प्रूव हुआ, सो वी गेट द सेम वैल्यूज विच वेरीफाइज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये लास्ट में स्टेटमेंट हमें लिखना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, व्हाट यू हैव टू गिवन, व्हाट यू हैव टू फाइंड, विच फॉर्मूला यू हैव टू यूज, दैट मीन्स यू हैव टू सम कैलकुलेशंस, ओके। इतने ही 3 स्टेप्स हमें करना है और कुछ नहीं है। और हाँ, मैं अभी भी इस लेसन के कुछ इस तरह के क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स डाल दूंगा, ठीक है, आपके लिए डालूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको खुद ही वो सॉल्व करना है। अभी भी मैंने कैसा आंसर ऑफ असाइनमेंट 1 ऐसा दिया है, उसका भी मैं वीडियो डालूंगा, पर आप खुद ही वो क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दैट क्वेश्चन देन एंड देन ओनली यू कैन सी माई वीडियो, ओके। पर आप खुद ही वो ट्राई कीजिए, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, ठीक है, बाय।